Hi everyone, this is Shruti Pandey from the Department of Chemical Engineering at IIT Kanpur, and I welcome you all to Lecture 6 of amines. Till now we have talked about the structure of amines, the classification of amines into primary, secondary, and tertiary amines on the basis of a number of hydrogens that have been replaced of ammonia. We also talked about the IUPAC and a common name system nomenclature, the details as well as the examples. After that, we discussed about the preparation of amines and uh, the physical properties of amines. जिसमें कि we talked in detail about the boiling point and the solubility trends. So again, I would say this that the boiling point and the solubility trends are very frequently asked in the examination. So you all must know the concepts, know it conceptually. कुछ रटना नहीं है, रीजन पता होना चाहिए कि जो ट्रेंड्स होते हैं वो क्यों होते हैं. After that, we were talking about the chemical properties, जिसमें कि the basicity is one of the most important chemical property of amines, which basically affects the reactions. ठीक है, तो I would then I would first give a quick recap of what we did in the previous lecture related to this basicity thing, and then we will move on. ठीक है, तो I'll divide the factors which affect the basicity into two parts. First, I will talk about the aliphatic amines, and then I will talk about the aromatic amines. क्योंकि there are different effects or the different factors which are more important or prominent in the different cases. ठीक है, so इस वजह से मैं इसको divide कर रही हूँ. That will be easier for you to understand. ठीक है, तो first we will start with the factors affecting basicity of aliphatic amines. So इसमें we already discussed about the first important factor, that is the inductive effect. ठीक है, अच्छा उस टाइम पे मैंने इंडक्टिव और रेजोनेंस इफेक्ट्स दोनों के बारे में बात करी थी, बट बिकॉज आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट इन न्यू वे, in a different way. So first I will talk about the aliphatic amines. तो उस aliphatic amines में resonance effect prominent नहीं होता, that is why. So this is inductive effect. And what is inductive effect? I told you that because the alkyl groups जो होते हैं कोई भी alkyl group हो, that shows the plus I effect. That is the positive inductive effect. That means it has a electron releasing power. ठीक है, तो I will write it down in short only. I am not going to explain everything in detail as I did in the previous lecture. So this is basically we're talking about the alkyl groups have electron releasing power. ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मतलब जो जो ग्रुप्स विच आर अटैच, इस केस में जो अमीन ग्रुप है, तो वहां पे जो अल्काइल ग्रुप्स आर डायरेक्टली अटैच टू द नाइट्रोजन एटम, राइट. तो जब इंडक्टिव इफेक्ट होता है, तो बिकॉज ऑफ दिस प्लस आई इफेक्ट, दिस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम इंक्रीजेस. ठीक है, तो जैसे जो बेसिसिटी की डेफिनेशन है, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इटसेल्फ. तो दैट इज वाई हम सारे इफेक्ट्स में जितने भी फैक्टर्स हैं, हमें उसमें यही directly or indirectly we'll only see कि whether the electron density is increasing or it's decreasing on the nitrogen atom, and that will decide the basicity. ठीक है, तो inductive effect के केस में, so we discussed that the aliphatic amines, they are the stronger bases than ammonia due to this inductive effect of the alkyl groups. So it increases the electron density on the nitrogen atom, and therefore it can accept or it can accept the proton easily. ठीक है, so that means अमोनिया इज लेस बेसिक एज कंपेयर टू, तो जो टर्सरी हमारे अमीन्स होंगे 3 डिग्री आर द मोस्ट बेसिक, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा ग्रुप्स अटैच्ड हैं अल्काइल ग्रुप्स, तो उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि ईच अल्काइल ग्रुप इज इंडिविजुअली एडिंग ऑन टू द इंडक्टिव इफेक्ट. देन 1 डिग्री अमीन, एंड देन वी हैव अमोनिया. ठीक है, और यू कैन राइट इट इन दिस फॉर्म. ठीक है, दिस इज द बेसिसिटी ट्रेंड. ठीक है, नाउ रेजोनेंस के बारे में वी विल टॉक अबाउट व्हेन वी आर डीलिंग विद द aromatic amines. Then the second important point was the stability of the cation. ठीक है, तो अभी
हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, दैट वाज ऑफ द अमीन इटसेल्फ। ठीक है, अब हम केटाइंस के बारे में बात कर रहे हैं, और वो केटाइंस कैसे फॉर्म होते हैं, व्हेन बिकॉज इट इज अ बेस। ठीक है, दीज आर बेसिस। बेसिस क्या करते हैं, दे एक्सेप्ट प्रोटॉन। तो व्हेन दे एक्सेप्ट प्रोटॉन, सो फाइनली दे जो फाइनल प्रोडक्ट होता है दैट इज द केटाइन। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज स्टेबिलिटी ऑफ द केटाइन। सॉरी, ठीक है, तो आपको बताया कि केटाइन कैसे बनता है आफ्टर द एक्सेप्टिंग ऑफ प्रोटॉन। नाउ इस केस में वी डिस्कस्ड इन द केस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द केटाइन दैट इसमें भी इनडायरेक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ द एल्काइल ग्रुप, लेकिन किसके लिए, जो प्रॉपर हमारा जो पेरेंट अमीन है उसका नहीं, बल्कि जो केटायन बना है, जो केटायन फॉर्म हुआ है उसके उसमें जो इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। So because of the electron releasing nature of the alkyl groups which are attached in the amine, so electron density on the nitrogen atom increases, and so it makes the unshared electron pair more available for sharing with the proton of the acid. ठीक है, तो जब ज्यादा अवेलेबल हो पाएगा इसका मतलब इट कैन इजिली फॉर्म द केटाइन। का सिंपल मतलब ये है कि जितने ज्यादा ग्रुप्स लगे होंगे, द नंबर ऑफ ग्रुप्स, इफ द नंबर ऑफ ग्रुप्स आर मोर, inductive effect is more, the electron releasing power is more, ठीक है, and more is the electron density on the nitrogen atom, and so the more basic is the compound, and the cation can form easily, that is why. So the substituted ammonium ion जो बनता है which is formed, it gets stabilized due to the dispersal of the positive charge. So this is the reason जो हमारे aliphatic amines होते हैं, they are the stronger bases than ammonia। ठीक है, सिमिलर रीजन है ऊपर जैसे ही, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इस केस में भी जो हमारा स्टेबिलिटी होता है ऑफ द केटाइन सिंपली सेज more alkyl groups, more plus I effect, or you can say the stronger plus I effect, more electron density on the nitrogen atom, more stable cation, जो cation बनेगा after the acceptance of the proton, उसकी बात हो रही है। so more stable cation, और जितना ज्यादा cation stable होगा that means it is a better base। ठीक है, so this is the actual reason जो यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो when we talk about the trend again it's similar, क्योंकि यहाँ पे we are talking about the inductive effect in the case of cation। So this is the case in the case of when we are talking about this factor। Then we were talking about one more important thing I will mention over here कि this stability of cation, this is important for both, like when we are considering gaseous or aqueous phase। ठीक है, so this factor is important whether we are considering gaseous or the aqueous phase। ठीक है, क्योंकि दोनों ही केसेस में cation is being formed। Now the third important thing is the solvation effect। This is important for the aqueous phase only। क्यों, क्योंकि सॉल्वेशन तो तभी होगा ना when you are dissolving that compound in water। ठीक है, तो सोलिबिलिटी तभी आएगा जब आप उसको डिसॉल्व करोगे वाटर में, तो वहीं पे सॉल्वेशन इफेक्ट कम्स इनटू प्ले। ठीक है, तो इस केस में भी we talked about that the substituted ammonium cation, they will, here they are also in the aqueous phase, also the stability of cation is important। So the substituted ammonium cation, they are stabilized not only by this inductive effect, ठीक है, जो सेकंड ऑप्शन में था, सेकंड फैक्टर में, बट वी ऑल्सो हैव द सॉल्वेशन विद द वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सॉल्वेशन का मतलब है वी आर इनडायरेक्टली टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि सॉल्युबिलिटी इन वाटर में भी वी वर डिस्कसिंग द सेम थिंग, जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो सॉल्वेशन में वी बेसिकली हैव टू सी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी ज्यादा है या फिर कम है, या फिर वी कैन से कितनी स्ट्रांग है या फिर वीक है। ठीक है, सो इस वजह से वी कैन से व्हेन द ग्रेटर इज द साइज ऑफ द आयन, lesser will be the solvation। Like if I want to write everything in one sentence as I did for the second case, we can simply say greater the size of the cation,
ग्रेटर साइज मतलब हम वही प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के बारे में बात करें। टर्शरी में बिकॉज वी आर हैविंग 3 alkyl groups, so obviously the size of the cation will be more in the case of tertiary. ठीक है, lesser will be the solvation. क्यों? बिकॉज इन द केस ऑफ टर्शरी, बिकॉज अब टर्शरी आप देखोगे तो यू यू डोंट हैव एनी हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन अगर आप केटायन की बात करोगे तो यू हैव वन हाइड्रोजन आइटम, बिकॉज प्रोटॉन जब आके लग जाता है तो टर्शरी अमीन विल फॉर्म R3NH+। ठीक है, तो उस केस में देयर इज वन हाइड्रोजन इन द केस ऑफ टर्शरी केटाइन, एंड दैट वन हाइड्रोजन विल फॉर्म वन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, सिमिलरली सेकेंडरी के केस में देयर आर टू हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड प्राइमरी के केस में देयर विल बी थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन फॉर पर मॉलिक्यूल। ठीक है, हम एक ही मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। तो दैट इज वाई जितना साइज ज्यादा होगा उतना सॉल्वेशन कम होगा, बिकॉज बेसिकली यू आर हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स, लेसर सॉल्वेशन और लेस हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इनडायरेक्टली lesser solvation, less stability of the cation which is formed, and so less basic. ठीक है, and if we talk about the trend, तो अगर हम केटायन के बारे में बात करें तो सॉल्वेशन इफेक्ट जो होता है सबसे ज्यादा, दैट इज इन द केस ऑफ प्राइमरी, द सेम रीजन। तो प्राइमरी में आई विल नॉट राइट डाउन द अमीन, आई एम टॉकिंग अबाउट द केटायन, सो आई विल राइट अबाउट द केटायन। वी हैव R NH3+, जिसमें सॉल्वेशन सबसे ज्यादा होगा। देन वी हैव R2NH2+, देन वी हैव R3NH+, एंड दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे केटायन के बारे में बात हो रही है। तो दिस इज द ट्रेंड। नाउ इफ यू सी द सेकंड केस एंड द थर्ड केस, second factor में the according to the stability of cation thing, if we are going by this factor, the tertiary amines, they are the most basic. But if we are considering the solvation effect, the primary amines, they are the most basic. ठीक है, ये जो ट्रेंड है वो किसके बेसिस पे है? यू कैन से अबाउट द सॉल्वेशन इफेक्ट और स्टेबिलिटी सेम रहेगा, और बेसिसिटी। ठीक है, तो ये दोनों ट्रेंड जो है वो आपस में अपोज कर रहे हैं। ठीक है, पहले वाले में टर्शरी ज्यादा बेसिक है और सॉल्वेशन वाले में प्राइमरी ज्यादा बेसिक है। सो दैट मीन्स कि इट डिपेंड्स कि हम कौन से कंडीशन में हमें कौन सा यूज करना है। ठीक है, जैसे मैंने एक्वस में बोला, गैसेस में आपको सिर्फ स्टेबिलिटी यूज करना है फॉर फाइंडिंग आउट दिस ऑर्डर। ठीक है, बट इन द एक्वस फेज यू हैव टू सी ऑल द अदर फैक्टर्स विच आर इंक्लूडेड। ठीक है, तो उन इन सारे फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन विल गिव यू द एक्चुअल रिजल्ट, द एक्चुअल ट्रेंड जो हमें एक्सपेरिमेंट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स आई मीन द पीकेबी वैल्यूज। अच्छा, देयर इज वन मोर फैक्टर दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, एंड दैट इज द स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब व्हेन द साइज, या वी कैन से कि जो नाइट्रोजन आटम है व्हेन इट इज मोर क्राउडेड, मतलब फॉर द केस ऑफ टर्शरी अमीन the nitrogen atom will be very crowded क्योंकि because there are all the three alkyl groups surrounding it। ठीक है, तो वहां पे बहुत क्राउडिंग रहेगा और वहां पे हिंड्रेंस रहेगा। so that is why this hindrance it basically affects the hydrogen bond formation। ठीक है, जब आप खुद सोचोगे जब क्राउड ज्यादा होगा, जगह नहीं होगा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, और एंड इन द कन्वर्स केस when we are talking about primary amine, उस केस में you only have one alkyl group। ठीक है, so the hydrogen bond formation will be easier, and so solvation will be easier। अच्छा, also in the case of primary amines, the size of the alkyl group also matters। ठीक है, so we are talking about this size of the alkyl group। ठीक है, तो so basically we can say in simple terms that when the alkyl group is small, suppose if we are talking about the smallest one, that is the methyl group CH3, then there will be no steric hindrance factor। तो हाइड्रोजन बॉन्ड आराम से फॉर्म हो सकता है, और आई मीन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन विल बी इजियर। ठीक है, बट if we have the alkyl group which is bigger than methyl, then there will be the steric hindrance factor और हाइड्रोजन बॉन्ड आसानी से बन नहीं पाएगा। ठीक है, सो therefore the changing the size of this alkyl group, भले ही वो प्राइमरी क्यों ना हो। ठीक है, प्राइमरी में भी हम लोगों को साइज देखना है।
तो changing this size of the alkyl group also results in the change of this order or this trend in the basic strength. And that's not very easy because simply we can say कि this is steric hindrance size of alkyl group. ठीक है, so steric hindrance is least for the cases or we can say there is no steric hindrance for the methyl case. और उसके अलावा अगर कोई भी दूसरा alkyl group है that will have more steric hindrance. तो we can say कि all these factors जितने भी हमने पढ़े they all have to be applied. ठीक है, उनको combine करके they have to be applied in combination. सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा. We have to apply them in combination to actually arrive to the final trend in the case of basicity. ठीक है, और so basically steric hindrance factor तभी लगेगा when you have the alkyl group which is greater than CH3. Greater than मतलब बड़ा है CH3 से. So if I, write down the trend which is observed while we are talking about the methyl substituted amines and ethyl substituted amines in the aqueous solution, ठीक है, क्योंकि gaseous में तो बहुत ज़्यादा नहीं है, we only have to look at the stability of the cation, which is indirectly related to the inductive effect. ठीक है, तो अगर gaseous phase के बारे में बात हो रही है तो आप सिर्फ stability of cation और inductive effect के बारे में ही बात करेंगे. And if we are talking about the aqueous phase, तो aqueous phase में I will simply write down the experimental results. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम aqueous phase कंसीडर कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर हम मिथाइल सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें so we have secondary, then we have primary and then we have tertiary. And at last अमोनिया तो वैसे भी सबसे लास्ट में ही आएगा. और वहीं पे इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इथाइल ग्रुप, क्योंकि मिथाइल के केस में एज आई टोल्ड यू स्टेरिक हिंड्रेंस हमें कंसीडर नहीं करना है. ठीक है, तो फॉर द केस ऑफ इथाइल वी आर ओनली टेकिंग इनटू अकाउंट द स्टेबिलिटी ऑफ केटायन एंड द सॉल्वेशन इफेक्ट ऑफ द केटायन. ठीक है, एंड फॉर द इथाइल we will also be considering the steric hindrance factor. उस केस में we will have the secondary first, then we have tertiary, then we have primary, and at last ammonia. Okay, so these are the trends for the aqueous phase. So this was all about the factors which affect the basicity of the aliphatic amine. Okay, so now we will be going to talk about the basicity of the aromatic amines. So the first factor is the resonance effect. Okay, so basically we are talking about the electron withdrawing power or the electron withdrawing nature of the ring. ठीक है, तो ये नेचर होता है फिनाइल रिंग का कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करती है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करती है, खींचती है. ठीक है, तो उससे क्या होगा कि व्हेन द रिंग इज लाइक फॉर द केस ऑफ एनिलीन, मतलब व्हेन द फिनाइल रिंग इज डायरेक्टली अटैच्ड टू NH2 ग्रुप. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, बिकॉज this nitrogen atom is already having a lone pair of electrons. ठीक है, so what this ring will do, this will withdraw the electron density towards itself. तो उससे क्या होगा, the electron density on the nitrogen atom will be less as compared to actual जो aliphatic के केस में होता है. ठीक है, so the electron density will reduce and therefore the be able to attack, मतलब acceptance of proton will not be that easy. उसका मतलब कि basicity will reduce. So that is why the aromatic amines, they are weaker bases as compared to ammonia due to the electron withdrawing nature of phenyl ring. ठीक है, तो simply we can write it in this way, they are lesser basic as compared to ammonia. ठीक है, now another important factor is the stability of cation. ठीक है, तो basically what happens is कि the unshared electron pair on the nitrogen atom, it is there in conjugation with the benzene ring. ठीक है, जैसे आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाते हो तो उसमें आप यही दिखाते हो कि दैट जो भी हमारा वो लोन पेयर होगा ना, दैट विल बी इन कॉन्जुगेशन विद द डिफरेंट प्लेसेस. तो हम उसको यही बोलते हैं कि जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ऑन द नाइट्रोजन एटम, इट इज इन कॉन्जुगेशन विद द बेंजीन रिंग, एंड सो
बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन द बेंजीन रिंग, वो बेंजीन रिंग में जाके इन्वॉल्व हो चुका है, सो इट इज नॉट अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन, विच मेक्स इट मेक्स इट अ वीकर बेस। ठीक है, तो बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द केटायन, तो आई विल फर्स्ट राइट डाउन द केटायन, आई मीन आई ड्रॉ द केटायंस, बिकॉज यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट आ जाता है, सो देयर विल बी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिलीन। ठीक है, हम एनिलीन के बारे में पहले बात करेंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट द सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, तो आई विल फर्स्ट ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ऑल द पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिलीन, एंड देन वी विल कंपेयर इट with the anilinium ion. ठीक है, so if we are talking about aniline, then there will be total 5 structures. ठीक है, कैसे मतलब proper resonance होगा, so if we are talking about aniline, all the 5 resonating structures will be, ठीक है, जैसे aniline है तो ये क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन will go over here, and ये जो डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है, this will go over this carbon. So finally, I mean you must be aware कि how the resonance structures are made. ठीक है, जो कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, हाइब्रिड्स होते हैं जो बोलते हैं। ठीक है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट यू आर सीइंग दिस, सॉरी आई हैव द सिंबल फॉर द रेजोनेंस हाइब्रिड आर दिस। नाउ व्हाट विल हैपन इज, जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट हैज ऑलरेडी गॉन इनटू द रिंग, क्योंकि वो रिंग में कॉन्जुगेशन कर रहा है, सो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैज बीन मूव्ड अवे। ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये and still now what will happen is this will go over here and this will go over here। ठीक है, तो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया and the negative charge will be on this carbon। now what will happen, this will go over here and this will go over this carbon, तो ये negative charge यहाँ पे है। in the next step this electron density will again be moving back to the nitrogen atom। ठीक है, so these are the 5 structures। first these are the 5 hybrids, इनको hybrids बोला जाता है, जो भी structures resonance में involved होते हैं। now you can say that first and fifth are same, but if you look at carefully तो आपको पता चलेगा जो ये पोजीशन है डबल बॉन्ड की, दैट इज डिफरेंट इन बोथ ऑफ देम। आप देखो, सो जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है दैट इज बिटवीन द कार्बन नंबर 1 and 2 ओवर हियर। ठीक है, और अगर आप इधर देखो तो ये जो बॉन्ड्स है दे आर शिफ्टेड, so that is why we are considering them as 2 different hybrids of the same compound aniline। तो ये जो भी हो रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर है दैट इज इन कॉन्जुगेशन, वो ऑलरेडी इन्वॉल्व है रिंग में। कॉन्जुगेशन मतलब द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मूविंग। ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज बेसिकली शिफ्टिंग। ठीक है, ये तो हो गया एनिलीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बट इफ यू टॉक अबाउट द एनिलीनियम आयन, ठीक है, क्योंकि हमें स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन के बारे में बात करनी है, तो जो हमारा एनिलीनियम आयन होता है दैट इज NH3+ विद विद द फिनाइल रिंग। ठीक है, तो अगर हम उसका ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक स्ट्रक्चर ये है बिकॉज देयर आर नो लोन पेयर्स। अब आप देखो एनिलीन के पास में ऑलरेडी लोन पेयर है, तो इस वजह से वो कॉन्जुगेशन हो रहा है। ठीक है, वो ट्रांसफर हो रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बट इन द केस ऑफ एनिलीनियम आयन, दिस नाइट्रोजन आइटम इज नॉट हैविंग एनी लोन पेयर, क्योंकि वो ऑलरेडी यूज अप हो चुके हैं प्रोटॉन के साथ में। तो दैट इज वाई जो हमारा दूसरा स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी सिंपली द रिवर्स, आई मीन द बॉन्ड्स विल बी शिफ्टेड ऐसे। ठीक है, सो देयर आर ओनली 2 रेजोनेटिंग हाइब्रिड्स, और यू कैन से यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो दीज आर द cations which will be formed। so इसका मतलब the number of resonating hybrids for the case of aniline is 5 and for the anilinium ion it is 2। ठीक है, तो and in the case of aromatic compounds we generally we say the if there are greater number of resonating structures or greater number of hybrids then the stability is more of that compound। ठीक है, तो इस केस में क्योंकि एनिलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा हैं एज कंपेयर टू द एनिलीनियम आयन, इस वजह से द एनिलीन का स्टेबिलिटी, आई मीन एनिलीन इज मोर स्टेबल देन द एनिलीनियम आयन। ठीक है, तो आई मीन आई कैन राइट इट ओवर हियर कि मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मीन्स
more stability of that compound. ठीक है, दिस इज द केस फॉर द लाइक व्हेन वी आर कंसिडरिंग द एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, एलिफैटिक में ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो एरोमेटिक में, so that is why aniline is more stable as compared to anilinium ion. So we can say that the basic nature, the basicity of aniline or मतलब any other aromatic amine, it would be less as compared to that of ammonia. तो आप अगर इसको और सिंपलर वर्ड्स में इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट, आप ऐसा कह सकते हो कि बिकॉज एनिलीन इज मोर स्टेबल। इसका मतलब जो एनिलीन है वो एनिलीनियम आयन बनाना नहीं चाहेगा। इट विल नॉट वांट टू मेक एनिलीनियम आयन। ठीक है, इस वजह से वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है कि एनिलीन ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, so it will not accept the proton and that is why it is less basic in nature as compared to actual ammonia. Aniline is more stable, so will not try to accept the proton. कोई भी कंपाउंड हो वो हमेशा अपनी मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाली स्टेट में रहना चाहता है। ठीक है, इसी वजह से एनिलीन एनिलीन ही रहेगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा प्रोटॉन को, एंड हेंस द बेसिसिटी ऑफ एनिलीन is less than that of ammonia. It's less basic than, or I will rather uh, instead of aniline I will say aromatic compound के generalize कर रहे हैं। aromatic amine is less basic than ammonia, जो हम लोगों ने पहले वाले रेजोनेंस इफेक्ट में देखा था। ठीक है, so these both are related, बट दोनों का जो रीजन है वो अलग अलग है। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट में हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, और स्टेबिलिटी में भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इज द मेन रीजन, बट बिकॉज हम स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स like we define the stability of aromatic compounds using the number of resonating structures. ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे यूज हुई है। Now one more important point that you should be aware of in this aromatic amines case is when we are talking about substitution in aniline. ठीक है, अभी तो हमने जो भी aromatic compounds के बारे में बात किया, that was when we are talking about aniline. ठीक है, तो व्हेन वी आर सब्स्टिट्यूशन इन एनिलीन मतलब हम कोई भी फंक्शनल ग्रुप या फिर कोई भी एल्काइल ग्रुप वी आर सब्स्टिट्यूटिंग इट इन एनिलीन, मतलब हम किसी भी पोजीशन पे, रिंग की किसी भी पोजीशन पे हम सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि लाइक इफ वी आर एडिंग वी आर सब्स्टिट्यूटिंग द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, so I will write it down. First, I will write down the examples also. In the case of electron, like OCH3, CH3 को ये इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, दे इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप खुद सोचो कि जब इलेक्ट्रॉन कोई भी ग्रुप इफ इट इज रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इट इज ट्राइंग टू इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन एटम में बढ़ेगा तो इसका मतलब उसका बेसिसिटी भी बढ़ेगा। ठीक है, और सिमिलरली द सेम इज द वाइस वर्सा, द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल NO2, SO3H और हैलोजन, दे डिक्रीज या फिर रिड्यूस द बेसिसिटी। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? इस केस में हम अमोनिया से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, वी आर कंपेयरिंग इट विद एनिलीन इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा बेसिक मतलब बेसिक नहीं, जो हमारा रेफरेंस कंपाउंड है वो अमोनिया सॉरी एनिलीन इटसेल्फ, ये हमारा रेफरेंस कंपाउंड है। ठीक है, अब हम कौन सा किस तरीके का ग्रुप लगा रहे हैं वो डिपेंड वो इफेक्ट करेगा इसके बेसिसिटी पे। ठीक है, तो सपोज ये हमारा बेसिसिटी, इफ आई एम डिनोटिंग द इफ आई एम राइटिंग आउट द ट्रेंड, तो नॉर्मल एनिलीन यहाँ पे है, तो इफ वी आर पुटिंग द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, किससे बढ़ जाएगा? एनिलीन से बढ़ जाएगा। ये है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का बेसिसिटी आप देखोगे तो दैट विल बी मोर देन द बेसिसिटी ऑफ एनिलीन, और सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आप देखोगे तो इट विल रिड्यूस द बेसिसिटी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का जो बेसिसिटी होगा, इफ द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इज अटैच्ड और इट इज सब्स्टिट्यूटेड इन एनिलीन, देन इट विल हैव द बेसिसिटी
more as compared to aniline. ठीक है, तो यहाँ पे रेफरेंस हमारा एनिलीन है एंड इट इज नॉट अमोनियम. So this was all, like there were three factors that we can discuss when we are talking about the basicity of the aromatic amines. So this was all about the basicity that I could discuss, कि जब हमें ट्रेंड्स देखने होते हैं तो हम कौन कौन से फैक्टर्स हमें देखने चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले आप एरोमेटिक का तो ध्यान ही रखना है कि द बेसिसिटी ऑफ अमोनिया इज मोर देन द एरोमेटिक कंपाउंड. ठीक है, और एलिफैटिक के केस में अमोनिया का बेसिसिटी कम होता है. मतलब इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अमोनिया, then the basicity of ammonia is more as compared to aromatic amine and it is less when it is compared to aliphatic amine. ठीक है, अब एलिफैटिक में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिफैटिक अमीन्स हो सकते हैं. ठीक है, टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी. ठीक है, एक्वा स्टेट हो सकता है, गैसियस स्टेट हो सकता है. इट सिंपली डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन. ठीक है, क्या साइज है जो भी हमारा अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है. ठीक है, तो ऑल दीज फैक्टर्स should be considered when we are talking about aliphatic amine. ठीक है, so these are all the general trends that these are the concepts that you can apply when you are doing the questions related to the order of basicity. ठीक है, now we will directly move on because we have discussed this, so we will directly move on to the chemical reaction. ठीक है, तो the first will be the reactions which are based on the basicity, or you can say the basic nature. ठीक है, इसमें तो वही वाला रिएक्शन है हमने डिस्कस किया था कि when acid plus base when they are traded with each other, so they simply form the salt. उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है, तो इस केस में बिकॉज अमीन जो हमारा अमीन्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, so that is why when acid is used, suppose I'm writing on the general reaction, this is RNH2, this is basic, or when you are using an acid, suppose HX. ठीक है, so the neutralization reaction जो होगा ना, that will form the salt and that will be R NH3 plus X minus. So this is the salt. ठीक है, and when you again treat the salt with any base like NaOH, any alkali, ठीक है, तो आपको वापस से जो हमारा पेरेंट अमीन है वो भी मिल सकता है. ठीक है, so you can also take this as a neutralization reaction जो आप you must have studied it in the lower classes कि acid plus base will give salt and water in the inorganic chemistry. ठीक है, यहाँ ऑर्गेनिक में salts are of this kind. ठीक है, तो ये तो सिंपल है which is based on the basic nature. So another important reaction of amines is alkylation. Alkylation मतलब कोई भी रिएक्शन जिसमें कि अल्काइल ग्रुप ऐड हो रहा हो कंपाउंड में, उसको हम लोग बोलते हैं अल्काइलेशन रिएक्शन. तो एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, क्या ऐसे बोल सकते हैं. तो व्हाट हैपेंस इज व्हेन amines are treated with alkyl halide, क्योंकि alkyl halides, as I have told you कि they basically undergo the nucleophilic substitution reaction. ठीक है, alkyl halides ऐसे reactions undergo करते हैं and because of that वहाँ पे substitution हो जाता है. ठीक है, so they cause a substitution. So because of that हमारा alkylation reaction होता है. ठीक है, तो इस केस में what will be the alkylation reaction? Like if I write down the general reaction, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? I mean this is RX. ठीक है, ये हमारा alkyl halide है, plus if I am reacting with this a nucleophile, treating this with a nucleophile, so what will happen is R nucleophile will be substituted over here and this X minus will be left out. So this is the example of nucleophilic substitution जो alkyl halides का बहुत important reaction होता है. ठीक है, now I am going to write down several reaction with the different kinds of amines. ठीक है, कि ये चीज amines में कैसा होता है. So suppose if you are taking nucleophile as ammonia NH3, if we have RX plus we are simply taking ammonia as a nucleophile, तो क्या हो जाएगा? The product would be R NH2. ठीक है, so I am getting a चलो ठीक है, I'll first write down all the reactions. If I am taking RX over here and I am taking a primary amine R prime NH2 as the nucleophile,
देन हमारा जो रिएक्शन होगा दैट विल बी आर एन आर प्राइम एच, ठीक है, प्लस एच एक्स. If we are taking the secondary, like this Rx will be same. This is the alkyl halide and R prime, R double prime N. ठीक है, and there will be no reaction if we are taking a secondary amine. ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और अमोनिया इसके साथ में रिएक्शन होगा, बट फॉर द केस ऑफ टर्शरी अमीन रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस. क्यों? क्योंकि टर्शरी अमीन में वी डू नॉट हैव द हाइड्रोजन एटम. आप देखो, बिकॉज ये जो हाइड्रोजन एटम है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, कहीं ना कहीं पे जगह तो होनी चाहिए ना सब्स्टिट्यूशन के लिए. ठीक है, तो ये हाइड्रोजन एटम विल गेट रिमूव्ड एंड इट विल एंड द alkyl group of the alkyl halide will get substituted in the place of this hydrogen atom. ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम का होना जरूरी है एंड दैट इज व्हाई टर्शरी अमीन्स दे डू नॉट विल नॉट फॉल इनटू दिस कैटेगरी. तो अभी आपने क्या देखा कि यहाँ पे हमारे पास अमोनिया है, अगर अमोनिया के साथ में रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे वी आर हैविंग 1 डिग्री अमीन एज अ रिएक्टेंट, यहाँ पे वी आर हैविंग 2 डिग्री अमीन. एंड हमारा जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे हमारा 1 डिग्री प्राइमरी अमीन इज अ प्रोडक्ट, यहाँ पे सेकेंडरी अमीन इज अ प्रोडक्ट एंड यहाँ पे टर्शरी अमीन इज अ प्रोडक्ट. ठीक है, नो रिएक्शन विद द टर्शरी अमीन. नाउ तो इफ यू ऑब्जर्व यू कैन सी कि प्राइमरी अमीन से वी कैन फॉर्म सेकेंडरी अमीन एंड सेकेंडरी अमीन से वी कैन फॉर्म द टर्शरी अमीन. मतलब 1 डिग्री हायर अमीन हमें मिल रहा है इफ वी आर यूजिंग द अल्काइल हैलाइड एज अ रीएजेंट. ठीक है, तो अगर हमें डिग्री बढ़ानी है अमीन्स की दैट कैन बी यूज्ड इन द सीरीज रिएक्शंस जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस हो रहे हैं. ठीक है, तो अगर आपको डिग्री बढ़ानी है एक से तो आप सिंपली अल्काइल हैलाइड का यूज कर सकते हो. ठीक है, तो वॉट एवर आपको लाइक विच एवर अल्काइल ग्रुप यू हैव टू ऐड और अटैच टू द amine, you can simply use the corresponding alkyl halide for the case of nucleophilic substitution reaction. ठीक है, तो alkylation में this is it that you must remember. And then we have another important reaction which is known as acylation. तो जैसे alkylation होता है when alkyl group is being added, वैसे ही acylation होता है when the acyl group is added. ठीक है, तो acyl group क्या होता है? alkyl group होता है when this is R. ठीक है, this is the alkyl group. अकाइल ग्रुप होता है COR. ठीक है, तो जब आपको ऐसा अकाइल ग्रुप ऐड करवाना है अपने किसी भी अमीन में, ठीक है, तो आप जो रिएक्शन कैरी आउट कराओगे दैट विल बी नोन एज अकाइलेशन रिएक्शन. ठीक है, सो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग क्योंकि इसमें यू कैन चूज अनदर लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपाउंड्स, द रिएजेंट्स टू गेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, सो बिकॉज दिस इज क्वाइट this will be quite lengthy, it will take some time, so we'll wrap up over here and we will do acylation and the other kinds of reactions of amines in the next lecture. So this was all for today. Thank you.